اللہ اللہ اللہ۔ حضرت علامہ مولا علی قاری رحمہ اللہ باری آپ جمع الوسائل شرح شمائل للترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 پر لکھتے ہیں اختلفوا فی انہ هل یجوز الخضب بالسواد، سیاہ خضاب کے متعلق اختلاف ہے۔ اکثر العلماء الی کراہۃ الخضب بالسواد، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ سیاہ خضاب مکروہ ہے، اور امام نووی کی تحقیق یہی ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مکروہ کا جو لفظ آتا ہے تو وہ میں اپنی طرف سے مکروہ تحریمی نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ مکروہ فقہاء نے ذکر کیا ہوا ہے کہ سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے، اس مکروہ سے مراد کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اور بعض علماء صرف جہاد کے لیے اس کی اجازت دیتے ہیں، جہاد کے علاوہ اس کی رخصت نہیں دیتے۔ حضرت علامہ مولا علی قاری رحمہ اللہ الباری جمع الوسائل شرح شمائل للترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 پر آپ لکھتے ہیں۔ امام حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی آپ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 میں فرماتے ہیں الخضاب بالسواد منہی عنہ لقول علیہ الصلاۃ والسلام خیر شبابکم من تشبہ بشیوخکم وشر شیوخکم من تشبہ بشبابکم۔ سیاہ خضاب ممنوع ہے، اور آپ فرماتے ہیں اسی لیے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے وہ نوجوان بہتر ہے جو بوڑھوں سے مشابہت رکھیں، تمہارے بوڑھوں میں سے وہ بوڑھا برا ہے جو تمہارے نوجوانوں سے مشابہت رکھے۔ یعنی داڑھی تو سفید ہو گئی ہے اور پھر اس سفیدی پر انہوں نے سیاہ خضاب لگایا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شر فرمایا ہوا ہے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 امام حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور حکایت بھی نقل فرمائی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 پہ آپ لکھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے خضاب لگا کر خود کو جوان ظاہر کر کے کسی عورت سے نکاح کیا، تو چند دن کے بعد اس کے سیاہ بال سفیدی سے بدل گئے، وہ خضاب کا رنگ جو ہے وہ اتر گیا، تو اس عورت نے اس کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ اس بندے نے مجھے دھوکہ دیا ہے، داڑھی سیاہ کر کے سیاہ خضاب لگا کر مجھ سے شادی کر لی، اور پھر معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بوڑھا ہے جوان نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا نکاح بھی رد کر دیا اور اسے کوڑے بھی لگوائے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو جن جن کتابوں میں سیاہ خضاب لگانے کی ممانعات ہے اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں ریاض الصالحین، اور اسی طرح غایت الاوطار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 468، نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14، نزہۃ الناظرین جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 59، اور ملفوظات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے ملفوظات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97، اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16، جلد نمبر 3 میں سے اسی صفحہ 16 پر ایک اور بھی آپ نے روایت نقل فرمائی ہے۔ آئیے کچھ تابعین کے اقوال کو پڑھتے ہیں کہ تابعین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کچھ بقیہ احادیث جو ہے اس موضوع پر وہ بھی سماعت فرمائے۔ حضرت امام عطاء ابن رباح اب مشہور معروف تابعی ہے اور جنہوں نے بہت ساری روایات بھی نقل فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ قال قد رأيت نفرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کافی صحابہ کرام کے ساتھ ملاقات کی ہے، فما رأيت احدا منهم يختضب بالوسمة، میں نے اس میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے سیاہ وسمے کے ساتھ خضاب لگایا ہوا۔ وہ لوگ جو ہے یخضبون ما یخضبون الا بالحنا والکتم وهذه الصفرہ، وہ خضاب نہیں لگایا کرتے ہوتے تھے سیاہ رنگ، بلکہ وہ جو ہے یا تو مہندی اور کتم کو ملا کے، یعنی سیاہ رنگ اور مہندی کو ملا کے، اور یا پھر زردی مائل کرتے ہوتے تھے۔ یہ روایت نقل کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 438 میں نقل فرمائے۔ وعن امام سعید ابن جبیر
सईद इब्न जुबैर मशहूर मारूफ ताबई है, क़ाल यक्सुल्लाह अब्दन फी वजहि नूर सुम्मा युतफ़िउहु बिस्सिवाद। इमाम सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु आप ताबई है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह करीम किसी बंदे को उनके चेहरे पर सफ़ीदी और नूर की लिबास पहनाता है और फिर वो उस लिबास को बुझा देते हैं, सिवाद और सियाह रंग से बुझा देते हैं। फरमाते अल्लाह नूर अनायत फरमाता है और ये उस नूर को सियाही से तब्दील कर देते हैं। ये रवायत भी नकल की है मुसन्निफ इब्न अबी शैबा ने, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 439 में। हदीस शरीफ समात फरमाए हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते क़ाल कुन्ना यौमन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखलत अलैहिल यहूद फरआहुम बीदुल लुहा फ़क़ाल मा लहुम ला यतग़य्यरून फ़क़ील इन्नहुम यकरहून फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाकिन्नकुम गय्यरू व इय्याकुम वस्सिवाद। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हम एक दिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक के साथ हुज़ूर की सोहबत में बैठे हुए थे कि यहूद के गुरोह कुछ यहूदी आए हुज़ूर के बारगाह में। हुज़ूर ने देखा कि उन सारों की दाढ़ियाँ सफ़ेद है, तो हुज़ूर ने पूछा फ़क़ाल मा लहुम ला यतग़य्यरून, इन लोगों की क्या पोजीशन है, ये अपनी दाढ़ियों की इस सफ़ीदी को क्यों तब्दील नहीं करते। तो किसी ने सहाबी ने उनको अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह इन्नहुम यकरहून, ये तो इसको बुरा जानते हैं, वो कहते हैं कि सफ़ेद है बस सफ़ेद ही रहने दें, इस पर रंग करना बुरा जानते हैं। हुज़ूर ने फरमाया ये बुरा जानते होंगे, लाकिन्नकुम लेकिन आप जो है गय्यरू इस सफ़ीदी को तग़यीर करते रहें, व इय्याकुम वस्सिवाद, लेकिन ये बात भी याद रखें अपने आप को बचाएं कालापन से, काला ना करें और बक़िया इसको तब्दील करें। रवायत नकल की है इस रवायत को अल-मअजमुल औसत लित्तिबरानी, इमाम तिबरानी ने नकल किया है जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 51 में। हदीस शरीफ समात फरमाए हज़रत अम्र इब्न अबसा सलमी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शाब शैबतन फिल इस्लाम औ फी सबीलिल्लाह कानत लहू नूरन यौमल क़ियामत मा लम यख़दिबहा औ यंतिफ़हा क़ुल्तु लि उस्तादी इन्नहुम यस्फ़िरून व यख़दिबून बिल हिना क़ाल अजल कअन्नहु यानी अस्सिवाद। अम्र इब्न अबसा सलमी आप रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी दाढ़ी को सफ़ेद किया इस्लाम में, यानी इतना अरसा वो इस्लाम में हालत ईमान में रहें कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई इस्लाम में, और या फ़ी सबीलिल्लाह, तो उनके लिए नूर है क़यामत वाले दिन, जब तक कि उसको खिदाब न लगाए और या जब तक कि उस दाढ़ी को काटे ना, नतफ़ ना करे, उस दाढ़ी को उखाड़े ना, काटे ना। तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा, उनके उस्ताद का नाम था शहर, तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा इन्नहुम यस्फ़िरून व यख़दिबून बिल हिना, हमने तो सुना है कि सहाबे किराम इस सफ़ीदी को तब्दील करते होते थे, या तो वो जर्द रंग लगाया करते होते थे या फिर वो खिदाब लगाया करते होते थे। किस तरह का खिदाब? बिल हिना, वो मेहंदी के साथ खिदाब। तो उन्होंने, मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि हाँ वो यही खिदाब लगाया करते होते थे, और हुजूर ने जिसके बारे में फरमाया कि मालम यख़दिबहा, जब तक कि उस सफ़ीदी का वो चेंज ना करे, फरमाया कअन्नहु यानी अस्सिवाद, हुजूर ने काले रंग से बचाने के बारे में फरमाया है कि काला रंग नहीं होना चाहिए। ये रवायत नकल की मस्नद अबी याला, और जो हदीस रकम है 1248 1248, और जामिउल मसानीद ले इब्न कसीर ने, उनने जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 386 386 में, और शाबुल ईमान जो इमाम बहक़ी की किताब है उन्होंने नकल की है रकम हदीस का 5972। ये हदीस की रवायत उन्होंने नकल फरमाई हुई है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गय्यिरु शैब वला तक़रबुस सिवाद वला तशब्बहू बिअअदाइकुम मिनल मुशरिकीन व खैर मा गय्यरतुम बिहि शैब अल हना वल कतम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गय्यिरु शैब, इस बुढ़ापे को, सफ़ीदी को आप तब्दील कर लो, कि वला तक़रबुस सिवाद, काले रंग की तरफ मत जाओ, काला मत किया करो, वला तशब्बहू बिअअदाइकुम मिनल मुशरिकीन। और हुज़ूर ने फरमाया
सियाह रंग इसीलिए ना करो कि आप मुशाबहत करोगे आपके दुश्मन जो मुशरिकीन हैं उनके साथ, क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया कि हुजूर ने फरमाया हुआ है कि सियाह खिदाब लगाना ये मुशरिकीन की अलामत है। व खैर मा गय्यरतुम बिहि शैब अल हिना वल कतम, और हुजूर ने फरमाया बेहतरीन वो चीज़ जिससे आप इस बुढ़ापे को चेंज कर सकते हो, बदल कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो, वो क्या है? हिना मेहंदी, और कतम वो बूटा जिसमें से सियाह रंग निकलता है। तो मेहंदी जर्दी माइल होगी और अगर कतम साथ मिलाएंगे तो फिर वो ब्राउन कलर होगा, डार्क ब्राउन होगा। ये रवायत नकल की माजमुल औसत इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह तआला की, और जल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 227, हदीस रकम 5160। आन आमिर शाबी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला मन यख़्दिब बिस्सवाद यौमल क़ियामह। आमिर शाबी आप रवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रहम की नज़र से, रहमत की नज़र से उस शख्स को नहीं देखेगा जिसने दुनिया में सियाह खिदाब लगाया होगा, क़यामत वाले दिन उसे नज़र रहमत से नहीं देखेंगे। रवायत नकल की है तबक़ात कुबरा इब्न साद की, और जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 340। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ख़तब अहदुकुम इम्रअतन वक़द ख़दब बिस्सवाद फलयअलमहा वला यग़ुरनहा। आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आप खितबत करोगे, किसी को निकाह की पैगाम किसी खातून की तरफ भेजोगे और इस बंदे ने सियाह खिदाब लगाया होगा तो उनको बता दें उस औरत को कि मैंने सियाह खिदाब लगाया, वला यग़ुरनहा, उससे धोखे में ना डाले, और वला यग़ुरन्नहा भी है, वला यग़ुरन्हा भी है, दोनों रवायत नकल है। उसको धोखे में मत डालें, कम से कम उनको ये बताए कि मैं जवान नहीं हूं, मैं बूढ़ा हूं। तो मालूम ये हुआ आयशा रज़ियल्लाहु तआला की इस हदीस नकल शुदा हदीस है कि जो भी दाढ़ी को शादी के लिए सियाह खिदाब लगाते हैं निकाह के लिए, तो गोया वो उस खातून को धोखा दे रहे हैं। इस रवायत को नकल किया सुनन कुबरा इमाम बैहक़ी ने, जल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 290 में। हज़रत अम्र इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सबग़ बिस्सवाद लम यंज़ुरुल्लाह इलैहि यौमल क़ियामह। हज़रत अम्र इब्न आस रवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने काला रंग लगाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन उसे नहीं देखेंगे, यानी नज़र रहमत से उनको नहीं देखेंगे। मसनद शाईन लित्तिबरानी हदीस रकम नंबर 1393 और तारीख़ दिमिश्क ले इब्न असाकिर सफ़ा नंबर 114 पे ये लिखा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है क़ाला अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हिना व नहा अनिस सवाद। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि आप हिना मेहंदी लगाया करो दाढ़ी और सर के बालों को, और हमें मना फरमाया हुआ है कि सियाह रंग मत लगाओ। अल बज़ार कश्फुल असरार हदीस रकम 2977, यह हदीस वहाँ नकल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गय्यिरु शैब वला तशब्बहु बिल यहूद वज्तनिबुस सवाद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बुढ़ापे को तगीर कर ले, लेकिन तशब्बुह बिल यहूद ना करे, यहूद के साथ मुशाबहत ना करे। यहूद के साथ मुशाबहत क्या थी? यहूद जो है वो दाढ़ी को सफ़ेद ही रखते थे, वो कोई कलर उनको नहीं लगाया करते। तो हुज़ूर ने फरमाया यहूद की मुखालिफत करो, उन जैसे ना बरो। और वनहा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज्तनिबुस सवाद, और काले रंग से भी अपने आप को बचाओ, क्योंकि काला रंग जो है वो मुशरिकीन का रंग होता है। सुनन कुबरा लिल बैहक़ी जल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 311 में इस रवायत को नकल किया गया है। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक कनीज़ आई और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दाढ़ी पर उन्होंने खिदाब लगाना था, और वो खिदाब उन्होंने सियाह कलर का खिदाब लाई।
आरद अला अमीर अल-मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब मौलातन लहू अन यसबग़ लिह्यतहू, आपकी एक कनीज आए और आपको दाढ़ी पर सियाह खिदाब लगाने की कोशिश कर रही थी। फ़क़ाल मा उरीद तत्फ़ई नूरी कमा अत्फ़अ फ़लान नूरहू, तो उन्हें अपनी कनीज को कहा क्या करने लगी हो, क्या तुम मेरी दाढ़ी को ऐसे कर दोगे कि जो मेरे चेहरे के नूर ख़त्म कर दोगे? तू चाहती ये है कि मेरे चेहरे का नूर ख़त्म करोगे जैसे फ़लान ने अपने चेहरे का नूर ख़त्म किया, यानी फ़लान बंदे ने जब अपनी दाढ़ी को सियाह खिदाब लगाए, तू भी ऐसी चाहती है कि मेरी दाढ़ी को सियाह खिदाब लगाए और मेरे चेहरे का नूर ख़त्म करें। तो मालूम ये हुआ कि सियाह खिदाब लगाने में बंदे के चेहरे का नूर ख़त्म होता है। ये हिल्यतुल औलिया ले अबी नईम अस्फहानी जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 182 में यह रवायत नकल है। इसी सफ़े में, इसी जल्द में सफ़ा नंबर 377 में जो पहले वाली रवायत मारिफतुस सहाबा है और दूसरे वाला हिल्यतुल औलिया का, उसमें जिक्र करते हैं हजरत काब इब्न अहबार ताबिई की रवायत नकल है। काला वलयस्बगन्न अक़वामुम बिस्सिवाद ला यंज़ुरुल्लाह इलैहिम यौमल क़ियामा, ये रवायत हिल्यतुल औलिया की है। पहली रवायत मारिफतुस सहाबा li अबी नईम अस्फहानी की, और ये भी अबी नईम अस्फहानी की ही किताब है हिल्यतुल औलिया। काब इब्न अहबार से रवायत है, ताबिई है, वो फरमाते हैं कि लयस्बगन्न अक़वामुम बिस्सिवाद, कुछ ऐसे लोग, कौम ऐसे होंगे जो अपने चेहरों को, अपनी दाढ़ियों को, अपने सर को वो सियाह रंग से खिदाब करते जाएंगे, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन नज़र रहमत से नहीं देखेंगे। हिल्यतुल औलिया ले अबी नईम अस्फहानी जल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 377 में है। हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस की झैल में कि गय्युरू हाज़ा बिशैइन वज्तनिबुस सिवाद, जो हदीस शरीफ मैंने पहले अर्ज़ की कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि इस बुढ़ापे को, जो हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस दाढ़ी के बारे में हुज़ूर ने फरमाया था, उसकी झैल में इमाम नववी लिखते हैं, फरमाते मज़हबुना इस्तिहबाब खिदाब शैब लिर्रजुल वल-मरअत बिसुफ़रा औ हुमरा, हमारा मज़हब ये है मस्तक कि ये मुस्तहब है कि एक बंदा खिदाब लगाए, मर्द हो या औरत हो, अपने बालों को बिसुफ़रतिन औ हुमरतिन, या जर्दी और या उसके अलावा सुर्खी कलर का, व यहरमु खिदाबहु बिस्सिवाद अलल असह, और हराम है कि सियाह खिदाब लगाए। सुनन अबू दाऊद जल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 222 पर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि जो मशहूर मारूफ मुहद्दिस है, उनका कवल जिक्र है। अब आए आला हज़रत की फतावा की तरफ। आला हज़रत फाजिल बरेलवी आप लिखते हैं, लिहाजा जो इमाम काला खिदाब करता है वो फासिक़ मुअलिन है। फासिक 2 किस्म के हैं, एक फासिक वो है जो फिस्क करते हैं और चुप के फिस्क करते हैं, और एक फासिक वो है अलल ऐलान फिस्क करते हैं। तो आला हज़रत ने फरमाया जो इमाम काला खिदाब करता है तो वो फासिक मुअलिन है, और इसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है और वाजिबुल इआदा है। फतावा बरेली शरीफ सफ़ा नंबर 68 पे आप लिखते हैं। आइए फतावा रज़विया का एक हवाला पढ़ते हैं। जो भी चीज़ बालों को सियाह करे, ख्वाह वो नीरा नील हो या मेहंदी हो या कोई तेल, सब नाजायज़ व हराम है। आप फरमाते हैं आला हज़रत कि अगर बाल किसी भी चीज़ से, लोगों का ये नज़रिया है कि आजकल कुछ शैम्पूज आए हुए हैं, उससे हम बाल धोते हैं तो फिर वो बाल सियाह हो जाते हैं, या हम कुछ तेल लगा लेते हैं, तेलों के साथ वो सियाह हो जाते हैं। तो आला हज़रत ने उसके बारे में फरमाया हुआ है कि जो भी चीज़ बालों को सियाह करे, ख्वाह वो नीरा नील हो। इंडिया में एक बूटा मिलता था नीरानील के नाम पर, और या मेहंदी हो और या कोई भी तेल, तो सब नाजायज़ व हराम है। आला हज़रत ने हराम का फितवा लगाया हुआ। फतावा रज़विया जल्द नंबर 10 और सफ़ा नंबर 59 पर। एक और रवायत भी बहार शरीयत से आप सुने।
बहार शरीयत जल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 595। मुस्लिम का खिताब सुर्खी है और काफिर का खिताब सियाही है, बरवायत हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर। बहारी शरीयत ने लिखा हुआ है और सफ़ा नंबर 595 जल्द नंबर 3। इसी तरह इसी मजमून को आप फितावा रज़विया जल्द नंबर 9 और सफ़ा नंबर 192 192 में, फितावा फ़क़ीह मिल्लत जल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 348 में आप ये रवायत देख सकते हैं।